It's day 12 and the time right now is 6:30. We are still in Jispa and heading towards our next left turn, that is Leh. We are directly hitting Leh and not taking any stops in between. But in general, people do take stop at Sarchu for acclimatization. हम pretty confident है कि हम hit कर लेंगे Leh without any need for it. तो हम confidently ये step उठा रहे हैं. And we are also stopping at Darcha for breakfast because after Darcha probably there is nothing for breakfast and washroom जैसा कुछ है नहीं. तो इसीलिए जो भी है Darcha तक खत्म है, वहाँ पे हम breakfast करेंगे and will directly be hitting Leh. यहाँ के लिए the sunrise was pretty early obviously for the location and season we are in. It was pretty good. Sunrise तो हमने देखा नहीं because we wanted to take some rest as we are leaving early. But जब हम उठे तब का यहाँ का मौसम was amazing. These mountains have heavy fogs on top of it. कल जितना clear mountains हम दिखा रहे थे आपको in the evening, now you can hardly see the mountain peaks because it's filled with fog. हमें ये भी लग रहा है because of this our route might be a little problematic. It might be a little rainy and foggy and stuff, but that's the experience. Let's see कैसा होता है रास्ता, how we end up in Leh, and everything will just take you along in our next left turn, that's Leh. So here in Jispa we stayed in a small campsite. Room tour तो मैंने आपको कल ही दे दिया था. And this camp is called Mojo Camp. यहाँ पे the best thing is hygiene and affordability. यहाँ पे इतना अच्छा मेंटेन किया है when it comes to washroom hygiene. मुझे कैंप में स्टे करने का एक ही था दिमाग में कि how will the washrooms be, because ठीक है सोना, comfort, beds and blankets ये तो ठीक था. When you're in camping you have a mindset, so that was okay. But washroom का मुझे एक thought था कि कैसे होगा. But here washrooms were good, the sleep had comfort, the blankets, the bed, everything was clean, well maintained. ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, it was way good to have to live in a camp. Even the materials used for camp are thick enough to hold on the cold. Also यहाँ के जो owner हैं, he is very hospitable. He has been running through to and fro for everything that we are requesting him for, be it food, be it for pillows, blankets, whatever our requirement is. He is on his tiptoes to fill in that, and that is good thing. When you're in a hotel, you're expecting that from your owner. He comes sit with us, chats with us, and yeah, बहुत hospitable है. That is good thing. Also like I said, the hygiene is amazingly maintained. यहाँ पे हम एक और family, or not family but another set of bachelors are residing. Not much of crowd, again that is a plus point because यहाँ पे crowd कम होता है तो you have good privacy and everything. But यहाँ पे बहुत सारे camps हैं उसी रास्ते पे, and we literally checked in all camps and सबसे ज़्यादा affordable यही था. We had been to another camp that had same camp setup, like बाहर का सब सेम था, मटेरियल सेम थे, बिकॉज तो वो वाला वैसे वाले कैंप दे आर चार्जिंग अराउंड 6K for 3 of us, and we didn't want it to put in 6K, but just in case we could get it for something cheaper. तो हमने यहाँ पे पूरा चेक किया and we only found this that was for around 2.5K for 3 people, and around जो खाना था वो भी बहुत ज़्यादा cheap ही था, affordable था, for very good taste. So I recommend if you're coming around Jispa, you can actually check in Mojo camps for better stay and affordability. We are currently at Darcha, and the bridge that we are heading towards is the longest bridge that was built on the highest altitude. इससे ज़्यादा लंबा bridge इस altitude या इसके ऊपर वाले altitude पे नहीं बना है. So this is one good and great thing about this bridge. Then this is in Darcha. ये also, like I mentioned previously, this is the last spot where you can find food, dhabas and something to eat and rest. इसके आगे you literally have nothing to eat, and Sarchu है 80 किलोमीटर पे. But then again, that is if you're staying by and for acclimatization. But if you're not, this is your last spot. अभी हम हैं अपने पहले water crossing के तरफ. Like you can see, it's a small water crossing, but it is quite exciting क्योंकि ये पहला है. We've done it. अभी हम हैं दीपक तल पे. This is दीपक तल because it is shaped in a form of दीपक, that is a दिया. तो उस शेप में इसलिए यहाँ का नाम दीपक तल है. The beauty of दीपक तल is how clear and crystal clear the water is. लिटरली ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है. मैंने थोड़े वीडियोस लिए जहाँ पे आई कुड फोकस on just the water, and it felt like I'm literally looking at a mountain and sky. And then when I turned around and saw, then we realized that is not actual sky and mountain, that is just the reflection. इतना clear waters है कि I can literally see the stones beneath. नीचे जो पत्थर है, the end of that lake, that is seen. It is so crystal clear.
The sky is reflecting so well on the water, like it is very pretty. हम लोग अभी हैं समवेयर ऑन द वे टुवर्ड्स ले। सांस बहुत चढ़ रही है अभी ऑलरेडी। हम लोग ऑलमोस्ट जिंगजिंग बार के पास ही हैं। ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पे कर लिया एट अ प्लेस कॉल्ड पैक्सियो। और तेंजिन ढाबा में क्या आंटी ने बहुत अच्छा पराठा वराठा बना के दिया, खा लिया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने जर्नी के लिए आगे। सारचो इज अराउंड 45 किलोमीटर्स। अभी हम लोगों ने जिंगजिंग बार की चढ़ाई स्टार्ट की है। जिंगजिंग बार पता नहीं अभी कितनी दूर है, और बोर्ड्स वगैरह कुछ है नहीं, बट व्यूज आर एक्सेप्शनल। रोड्स यार पहले बहुत खराब थे, अभी दे आर ब्यूटीफुल। लाइक आई कैन नॉट सी अ सिंगल पॉट होल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोड्स, वेरी वेल मेंटेन्ड, ऑल थैंक्स टू ब्रो। इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स थे, इतना सारा रोड खराब था, अभी एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला है एक्सेप्ट वन वेरी स्मॉल वन विच इज इवन नेग्लिजिबल। उसके अलावा भाई बहुत 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 सही रोड्स है अभी तक, तो बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक जैसे जैसे ही हम बोल रहे हैं आगे आगे एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है। वाटर क्रॉसिंग है पता नहीं, या पानी कुछ ये होके यहाँ से इस तरफ से आ रहा है पता नहीं। आई थिंक पानी थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है, बस वाटर क्रॉसिंग नहीं है। सो ये जो आप ब्यूटीफुल सा लेक देख रहे हो इसका नाम है सूरज ताल। ये ऑन द वे टुवर्ड्स बारालाचा पास पड़ता है। आई थिंक जिंगजिंग बार पीछे चला गया है। आई एम नॉट श्योर, हमें बोर्ड तो दिखा नहीं है। अगर बोर्ड नहीं दिखा है तो आया होगा नहीं आया होगा हमें पता नहीं है। बट दिस होल लेक इज सराउंडेड बाय स्नो पीक माउंटेन्स, ब्यूटीफुल क्लाउड्स। ठंड यहाँ पे दिख नहीं रही है उतनी है, बट देन चुभने वाली हवा बहुत ज्यादा है। बट हमें थोड़े लोगों ने बताया कि विंडोज रोल डाउन करके चलाओ, और विंडोज रोल अप करके मत चलाओ, और ब्लोअर और मत चलाओ। दैट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज यू एएमएस। तो हम लोग बस वही फॉलो करके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत गर्म वरम पहन के। सो हाँ, फाइनली हम लोग अभी हैं बारालाचा पास विच इज अराउंड 60,000 फीट का एल्टीट्यूड। सांस बहुत चढ़ रही है यहाँ पे, ठंड चुभने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नो भी ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो गया है, थोड़े थोड़े बस पैचेस ही पड़े हुए हैं। बट जो भी है इट्स ब्यूटी इज अनडिस्क्राइबेबल। बट एक चीज है कि लोगों ने वहाँ कचरा फैला रखा है, और भाई लोग थोड़ा अगर रेस्पॉन्सिबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। The sun is directly hitting on your face. इस बोट के उस तरफ हवा ऐसी चल रही है कि यू कैन नॉट स्टैंड, और इस तरफ देयर इज जस्ट स्लाइट ब्रीज। ऐसे बस एक बोट से ही दो अलग एनवायरनमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट स्नो तो सब चला गया है। वेरी लिटिल पैचेस ऑफ स्नो आर लेफ्ट, बट दैट अगेन इज वेरी ब्यूटिफुल, स्पेशली उस तरफ जहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ पे हल्के से स्नो पैचेस हैं, एंड देन उन पे क्लाउड वाला शैडो पड़ रहा है। So that makes it look like, extremely surreal, something not, you cannot imagine something like that. मैं अगर किसी को बताऊंगी भी तो भी वो कहेंगे कि कैसा होता होगा, वैसा वाला व्यू है इधर। इट इज अमेजिंग। हल्की सी सांस चढ़ रही है इफ यू वॉकिंग अराउंड अ लॉट, बट हाँ वो तो इतनी एल्टीट्यूड पे टेकन है। सो यस, बट एवरीथिंग इज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल। हम लोग अभी हैं सारचू में। टाइम हो रहा है अराउंड 11 AM। रोड्स अंटिल सारचू आर ब्यूटीफुल, व्यूज आर एक्सेप्शनल, जैसे आप लोग देख सकते हो। ब्रो हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। अभी सारचू में जो है कैंप्स लगे हुए हैं, आई थिंक अच्छे खासे कैंप्स ही हैं। ले यहाँ से और अराउंड 250 किलोमीटर्स है। आई थिंक वी शुड बी एबल टू रीच बाय 5-6 होपफुली, बिकॉज हम लोग रुकते रुकाते शूटिंग करते करते चलेंगे, तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए। आगे का रास्ता तो देखते हैं और क्या है। आगे हम लोग पांग में लंच वंच के लिए रुकाने का सोच रहे हैं। तो हम लोग अभी हैं गाटा लूप्स में। गाटा लूप्स इज बेसिकली वन पार्ट ऑफ द स्ट्रेच विच हैज अराउंड 32 हेयरपिन बेंड्स, और रोड एकदम से स्टीप इंक्लाइन होता है, और वी गेन एल्टीट्यूड लाइक रियली फास्ट। वेल, गाटा लूप्स के पास एक स्पॉट है जो मेरे को दिखा नहीं, जहाँ पे लोग बॉटल रख के जाता है पानी वाला।
बोलते हैं कि यहाँ पे एक कोई तो ट्रक ड्राइवर था, तो जब वो लोग आ रहे थे तो ड्राइवर पानी खत्म हो गया था उनके पास, और ड्राइवर गया था पानी ढूंढने के लिए, और जब तक आया तो क्लीनर का डेथ हो गया था। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे यूजुअली जब जाओ तो पानी चढ़ा के जाओ, पर पता नहीं यहाँ पे पानी का एक स्पॉट था, मेरे को तो दिखा नहीं कहाँ है। अगर दिखता है तो हम भी डाल के जाएंगे, बॉटल नहीं डालेंगे, पानी डाल के जाएंगे। बट देन अगेन होप दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, बस बनाई हुई स्टोरी हो। बस अभी हम लोग तो गाटा लूप एंजॉय करेंगे। हम गाटा लूप्स के ऑलमोस्ट एलिवेटेड पार्ट पे आ गए हैं। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये एक रास्ते में लिखी गई कोट है फ्रॉम ब्रो। यहाँ पे द गाटा लूप्स इज वेरी प्रिटी व्हेन इट कम्स टू द साइड्स। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द वीडियो। मैं ज़्यादा आउट ऑफ रेंज जाके वीडियो ले नहीं रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी स्कैरी, बट you can see the sinking drops on roads. And yes, here is where the water ghost story is, जहाँ पे पानी थोड़ा रख के जाते हैं for in the memory of lorry cleaner or driver who lost his life in search of water. So here we are dropping some water as well. And यहाँ के lorry drivers बड़े ही careless है, as in reckless. There are few who are very considerate and do consider cars coming from ahead, but then थोड़े इतने जाता है जैसे उन्हीं का रास्ता और सिर्फ वही एक ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल होके जाना पड़ता है because there are steep deviations, and in steep deviations से they come in like with no brake and then they just crash down. हम फिर भी थोड़ा पहले देख के थोड़ा आराम से चल रहे हैं, but whoever is coming this way has to be a little careful when it comes to lorry drivers. You'll have to keep a track of sound when they're coming around and just be prepared to stop by and search for a spot to spot by, because वो fractions of seconds का भी time नहीं देंगे to search and stop. अभी हम हैं नकीला पास पे. This is 15,000 odd feet high, और यहाँ पे ये स्टोन के ऐसे ये बनाए हैं as in these artificially balanced stones. They say that ये stones place करके कोई wish मांगते हैं तो वो पूरी होती है. This is what I've heard. I don't know how true it is, but then this is the spot and this is how the view around is. So Pang अभी close to 30 kilometers है, और road की condition is awful right now. But I think road widening का काम चल रहा है, and धूल मिट्टी तो उड़ी रही है बहुत ज़्यादा. व्यूज़ वगैरह आर ब्यूटीफुल एज यूजुअल. हाँ, थोड़ा रिस्की है और तबीयत थोड़ा ख़राब हुई है मम्मी की, मेरी और निमरा की, तीनों की थोड़ा चर चकरा रहा है. पर इतना क्या हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कैरी कर रखा है, उस हिसाब से आई डोंट थिंक हम लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी. ऑक्सीजन हम लोग लेते रहेंगे टाइम से और पानी पीते रहेंगे. होपफुली एक बार ले जाके कोई लोकल क्लिनिक से टेस्ट करवा लेंगे, और अगर सब ठीक निकला तो आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो. बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे लद्दाख में चलाने का मज़ा अलग ही है. एयर ऑफ रोड में चलाने का मज़ा ही एक अलग है. ये रोड ख़राब है, बट देन इट्स इजीली यू कैन क्रूज एट 40 किलोमीटर्स पर आवर. ऐसा नहीं कि इतना ख़राब है कि आप चला ही नहीं सकते. बट हाँ, जब गाटा लूप्स आया तो भाई मम्मी इतनी डर गई थी कि मैं आऊँगी नहीं, मेरे को ले से वापस भेज दे बोल रही थी. अभी ऊपर आके थोड़ा रोड्स देख रही है और थोड़ा बोल रही हाँ ठीक है, इतने होंगे तो ठीक है. बट ऊपर बहुत ज़्यादा डर गई थी. इनफैक्ट निमरा भी बहुत डर गई थी. But at least the roads wide है. I think we should be able to reach Leh soon. The time right now is around 1:35 PM. बीच में हमारा प्लान है एक दो चीज़ें शूट करने का नियर बाय मोरे प्लेन्स. हम लोग मोरे प्लेन्स में एक दो रील आइडियाज़ हैं, वो शूट करेंगे और we'll reach Leh by probably 6-7. So we have just reached Lachungla, which is around 16,616 feet. This is actually at a higher altitude than Balalacha Pass. तो यहाँ तक आई थिंक रोड कंडीशंस
भाई बहुत बुरे हैं, अभी भी रोड कंडीशन बहुत बुरे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, चिल करके चलते रहेंगे बस, और क्या। आई थिंक अगले कुछ ही टाइम में पांग मिल जाएगा, और पांग मिलने के बाद थिंग्स विल बी लॉट मोर ईजियर। वैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तगड़ों से चल रहा है लग रहा है, तो होपफुली अगर आप लोग अगले साल या फिर उसके अगले साल आओगे तो मे बी एंड तक भी आपको रोड मिल जाएगा फुली कंस्ट्रक्टेड। बट आई डाउट घाटा लूप्स वाला रोड बनेगा, बिकॉज वहाँ पे कुछ काम चालू ही नहीं हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ तक तो काम ज़ोरों शोर से चल रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा काम। टाइम अभी 3:30 PM एंड वी आर एट पांग और पांग जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच वगैरह कर लिया है। तबीयत थोड़ी ढीली सी है मॉम की और मेरी वाइफ की। देखते हैं, अभी प्लान तो यही है कि जल्दी जल्दी ले रीच होते हैं और वहाँ पे जाके जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे एक बार चेकअप करवा लेते हैं, और देखते हैं अगर उन्होंने वो कुछ अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ बोलते हैं तो, नहीं तो वी शुड बी गुड। अगर एक्लेमेटाइज सही हो जाएगा सब कुछ तो रेस्ट ही कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। अभी हम हैं मोरे प्लेन्स पे, टाइम बज रहा है अराउंड 4:12 PM। खासियत ये है मोरे प्लेन्स की कि भाई एक स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रोड है फॉर अराउंड 20-25 किलोमीटर्स। ओनली थिंग इज दैट ऊपर नीचे थोड़ा अंडुलेशन होती है, उसके अलावा द रोड इज स्ट्रेट फ्लैट, और चारों तरफ आपके ऑल यू कैन सी इज माउंटेन्स एंड माउंटेन्स। एक्चुअली अभी तो मैं फैमिली के साथ हूँ, अगर मैं अकेला था तो देयर इज ऑफ रोड रास्ता साइड से, जहाँ से आप पूरा रास्ता ऑफ रोड करके पूरा धूल मिट्टी उड़ा के जा सकते हैं। बहुत सारे बाइकर्स करते हैं, बहुत सारे थार वाले लोग करते हैं, बट अभी फैमिली है और प्लस तबीयत ठीक नहीं है लोगों की, तो मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूँ और रोड पे ही चल रहा हूँ। अरे अगला स्टॉप है तांगलंगला में लूँगा, उसके अलावा कहीं और रुकेंगे नहीं। रुकेंगे तो भी बस सिर्फ चाय पानी के लिए रुकेंगे, और कुछ नहीं। हम लोग तांगलंगला का वो जो चढ़ाई होती है, वी ऑलरेडी स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप टुवर्ड्स अप टू द पीक। यहाँ पे रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, दे मेंटेन्ड वेरी वेल, एज वेल एज वो जो प्लेन्स थे, वो प्लेन से लेके यहाँ तक द रोड्स आर मेंटेन्ड वेरी वेल। देयर आर नो पॉट होल्स, वेरी लिटिल टू नो वाटर क्रॉसिंग। पहली वाटर क्रॉसिंग यही आई है हमारे सामने, और इससे पहले कोई वाटर क्रॉसिंग थी नहीं। माउंटेन्स के बीच में से ऐसे रोड कट होके, लाइक माउंटेन्स कट होके रोड बना गया है, दैट यू कैन एक्चुअली सी इन द वीडियो। when you are traveling from that side, you can see the path that is made through mountains. यहाँ पे थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन का इफेक्ट हमारे ऊपर हो गया था, but hopefully it shouldn't happen further, and let's just hope for the best. हम पहुँच गए तांगलंगला पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे थोड़ा बर्फ़ है। Not many tourists, just a couple of few people. हम यहाँ पे रुके एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, ऐसे ही एक रोड साइड कैफ़े है। क्लीन वॉशरूम्स थे यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में जहाँ भी गए थे मुझे क्लीन वॉशरूम्स नहीं मिले थे, तो आई डेंट रियली यूज़ एनी। यहाँ पे मुझे अच्छे थोड़े मैनेजेबल और टू बी ऑनेस्ट बेटर देन मैनेजेबल वॉशरूम्स मिले, तो हम यहाँ पे चाय पानी के लिए रुक गए थे। दिस प्लेस इज समवेयर अराउंड 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेह। यहाँ से लेह 70 किलोमीटर्स पड़ता है, and probably we are not planning to stay around anywhere else in between now until Leh. Yeah, हम सब बहुत tired तो हैं, but can't help. Beauty comes with a price, I guess. अभी हम हैं लाटो ब्रिज के थोड़े नज़दीक। वी जस्ट क्रॉस द लाटो ब्रिज एंड हियर वी सी कलर्स ऑन माउंटेन्स। लिटरली यहाँ पे बरगंडी, ब्राउन, येलो, ग्रीन शेड के माउंटेन्स हैं, which you might have not seen in like anywhere else. यहाँ पे वेजिटेशन भी अच्छी है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स बनाए हैं with
great vegetation, colorful flowers, surroundings. ऐसा एक spot यहाँ पे इतना dry area में expect करना is very different, because we weren't expecting a spot like that, but that is obviously artificially vegetated because they wanted to create a spot that is filled with greenery and colors. तो यहाँ पे rightly placed है वो spot. When we are looking at them thinking कि हाँ ये vegetation है, colors है, flowers है, we directly step into mountains filled with colors, and this is natural. And ये probably, I don't know, this must be because of some minerals in the salt, मतलब in the soil that is on the mountains. But यहाँ पे इतने colors हैं, literally green, burgundy, yellow, brown, all of these. And then just by the side we have a river. So this is just like a fairy tale picture drawing that we see in storybooks. ये है उपशी, which is 50 kilometers from लेह. हमें लेह को जाने के लिए 50 kilometers जाना है, and this is the river that we have to cross. This is the bridge, and यहाँ पे water level सबसे ज़्यादा high है. अभी तक मैंने मनाली से जितने भी देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी मैंने यहीं पे देखा है. After 12 days of restless driving and traveling through numerous cities, we are finally here where we wanted to be. And this is the biggest milestone of our entire journey. That is, we are here in Leh. We can officially say that we are late today. But yeah, this city is very beautiful, very, very cozy and warm. The people here, there is a different vibe I couldn't feel in the entire of India that I had been to. To be honest, in the cities that I've been since Bangalore, Delhi, Agra, where I've been, I feel like if I ever have to stay other than Bangalore, it will be Leh, because the warmth here, the people, the culture. Trust me, I can talk about the culture and the architecture of here for I don't know, hours together. It is that amazing, that intricate, and people here live in harmony, respecting each other, respecting each other's religions and everything. Trust me, I can talk about Leh for an hour or more than that. And when it comes to nature and the surroundings, that I'll take you along with me in further videos, because this is not possible in just one video. I am very, very excited, and so is Akram, for finally living in Leh. This was the biggest dream, to be here with our mom and to travel and explore the city, walk in the streets. This is something that I cannot explain, because this was that one milestone that we built our entire trip around. We wanted to be in Leh, and the entire trip, the entire journey was framed around Leh and Ladakh route. So to be here is something. So it gives you an achievement. It gives you the feeling of an achievement that I feel like कि कर लिया, कि हो गया भाई, हम यहाँ पे आ गए हैं. We've hit our milestone. We've hit our milestone for this journey, for our life. We've ticked up our bucket list that we had on mind. So we are here in Leh, Ladakh, amongst the mountains, snow-peaked mountains, sun hitting your eyes, but the fresh breeze passing by your face. Trust me, this is a complete mix of tradition, culture, religions, intricate architecture, amazing nature, warmth of sun, breeze of snow, and whatnot. Just everything compact in one single city is what Leh is for me.